Okay, so in the last class we have discussed about Otto cycle, and previously we have discussed Carnot cycle. So two cycles we have, two air standard cycles we have covered so far. So now today we will discuss about diesel cycle. Okay, so let me share the page. Okay, this we have discussed already for Otto cycle. That is the formula for efficiency of Otto cycle is in terms of compression ratio. You know, एक चीज आपको बताना है कि यहाँ पे since the addition of heat as well as rejection of heat, during 2 to 3 process heat was added at constant volume, and 4 to 1 process heat was rejected, and both processes were at constant volume. So this is the reason that Otto cycle is also known as constant volume. इसलिए यहाँ देखो लिखा भी हुआ है constant volume और Otto cycle. ठीक है, since the addition as well as rejection of heat takes place at constant volume, मेनली होता है हीट एडिशन किस पे कर रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग आप इसको नेमिंग करेंगे. इफ हीट एडिशन एट कांस्टेंट वॉल्यूम देन इट इज साइकिल. इफ हीट एडिशन इज डन एट कांस्टेंट प्रेशर देन इट इज नोन एज कांस्टेंट प्रेशर. लाइक ये सी नेक्स्ट है आपका डीजल. दिस वन here you see it is a constant pressure or diesel cycle. So why it is called constant pressure cycle? Because in this cycle the heat will be added at constant pressure. Okay? The pressure inside the cylinder will remain constant. And since it is diesel cycle, the diesel cycle means all diesel engines are based on diesel cycle. Means the working cycle diesel cycle. Excuse me, sir. Yes. The voice is not clear. क्या हो रहा है वॉइस में? सर कट रहा है. कट रहा है, कभी कभी एकदम डिम हो जा रहा है. सर वॉइस कट रहा है. सर कभी कभी अचानक से एकदम कम हो जाता है बस. कम डिस्टर्बेंस होगा. पेज विजिबल है ये? यस सर. यस सर. ओके, सो लेट मी डिस्कस दिस डीजल साइकिल. ये इसको थोड़ा सा उल्टा बना हुआ है इसको. यस, फर्स्ट लेट मी डिस्कस दिस डीजल साइकिल. 1 to 2 it is your reversible adiabatic compression process. 2 to 3 it is your constant pressure heat addition. Since during 2 to 3 you can see the pressure is constant. ठीक है, constant pressure line है. 3 to 4 it is reversible adiabatic expansion, and 4 to 1 it is constant volume heat rejection, because during 4 to 1 volume is constant. Okay, so यहाँ पे heat जो add हो रहा है वो 2 to 3 process में हो रहा है, and you can see here pressure is constant. That's why it is also known as constant pressure cycle. And 4 to 1 there is rejection of heat which is constant volume, so it is known as constant volume heat rejection process. तो अब देखिए यहाँ पे 1 to 2 ये कंप्रेशन है, 2 to 3 हीट एडिशन, 3 to 4 एक्सपेंशन और 4 to 1 आपका हीट रिजेक्शन. ये पीवी डायग्राम. दिस इज टीएस डायग्राम. 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4 एंड 4 to 1. ठीक है, तो इसको अभी हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं. इसके लिए आपको वर्किंग समझना होगा, तब आपको ये साइकिल क्लियर होगा. ठीक है, तो जैसे हमने पेट्रोल इंजन का वर्किंग एक्सप्लेन किया था, इन द सेम वे नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस डीजल इंजन. फर्स्ट यू सी, सपोज यू इमेजिन अबाउट अ डीजल इंजन. जैसे आपका डीजल बेस्ड जनरेटर वगैरह जो होते हैं उसका वर्किंग भी वही है जो डीजल इंजन का है. सपोज दिस इज डीजल इंजन. ठीक है, डीजल इंजन में एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा कि यहाँ स्पार्क प्लग नहीं होता है. हैव यू सीन? नो सर, नहीं होता. इन डीजल इंजन देयर इज नो स्पार्क प्लग. इंस्टेड ऑफ स्पार्क प्लग क्या होगा? सर कंप्रेशन के हीट से फायर. हाँ, वो तो वर्किंग होगा, बट इंस्टेड ऑफ स्पार्क प्लग व्हाट विल बी देयर?
No idea. Anyone? So can you repeat the question? In diesel engines, spark plugs are not used. So instead of a spark plug, what we are using? How combustion takes place? No one knows. So there is no need of spark plug in diesel engine. इसीलिए तो पूछ रहे हैं कि कैसे होगा कंबशन. सर वो कंप्रेशन से ही होता है. अच्छा, anyone of you know the working of diesel engine? You are correct that the compression itself creates the combustion, and that is the reason spark plug is not used. अच्छा ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे ये पेज दिख रहा है आप लोग को, विजिबल है? Yes, sir. Yes, sir. दिस इज इनलेट वाल्व, ठीक है. दिस इज इनलेट वाल्व, दिस इज एग्जॉस्ट वाल्व, एंड इट इज, ये जो दिख रहा है इट इज फ्यूल इंजेक्टर. दिस इज फ्यूल इंजेक्टर. हमने बताया था इन केस ऑफ पेट्रोल इंजन्स ड्यूरिंग सक्शन स्ट्रोक व्हेन पिस्टन मूव फ्रॉम टॉप डेड सेंटर टू बॉटम डेड सेंटर, यू नो टॉप डेड सेंटर बॉटम डेड सेंटर भी हमने आपको बताया था. टॉप डेड सेंटर मीन्स इट इज अपर मोस्ट पोजीशन अप टू विच पिस्टन कैन ट्रेवल विद इन द इंजन सिलेंडर, एंड बॉटम डेड सेंटर मीन्स इट इज द बॉटम मोस्ट पोजीशन अप टू विच पिस्टन कैन लिनियरली ट्रेवल विद इन द इंजन सिलेंडर. ठीक है, ये तो पता है आप लोगों को, बीडीसी टीडीसी. ठीक है, तो you know when piston move from top dead center to bottom dead center, vacuum will be created inside the cylinder, and due to that vacuum, charge means the air and fuel mixture, but air and fuel mixture in case of petrol engine, देखिए पेट्रोल और डीजल में डिफरेंस है. In case of petrol engine, we first prepare the mixture of air and fuel in the carburetor. Once the mixture is prepared in the required proportion, it will be supplied to the engine cylinder during the suction stroke. But in case of diesel engines, during suction stroke, only air is allowed to come inside the engine cylinder. Fuel will be added later. Is it clear? Yes, sir. When piston moves from top to bottom, then there will be vacuum inside the engine cylinder, and due to the vacuum, there will be pressure difference from this inlet valve and inlet to the valve and engine cylinder. There will be pressure difference, and because of this pressure difference, this air comes inside the engine cylinder. So during suction stroke, what will happen? अगर हम suction stroke को यहाँ draw करना चाहें, तो what will happen? Piston will be at bottom dead center position, and entire cylinder will be filled with the air because of the suction or because of the pressure difference between inlet to the inlet valve and the engine cylinder. This will be filled with the air, and piston will be at bottom dead position. ये हो जाएगा suction फर्स्ट स्ट्रोक. ठीक है, क्लियर? सक्शन स्ट्रोक इज क्लियर? Yes, sir. One second, just wait.
Yes, sir. Actually, some construction work is going on, so that's why it's creating disturbance. Okay. So during suction stroke, the piston will be at this bottom dead set position, and entire cylinder will be filled with air only. Okay. Now, during you just imagine about next stroke, that is compression stroke. When piston moves upward, ठीक है, piston यही piston आपका upward move करेगा, and due to this upward movement, ठीक है, due to this upward movement, and at this moment this inlet valve and exhaust valve both will be closed. तभी compression होगा, otherwise ये release हो जाएगा यहाँ से, दोनों close होगा. And if this both valves will be closed, whatever charge is inducted inside the engine cylinder during suction stroke, it will get compressed up to high pressure and high temperature. You know, due to compression, pressure will be high, temperature will be high. तो यहाँ पे जो आप प्रोसेस दिखाएंगे 1 to 2, ये कंप्रेशन प्रोसेस हम लोग पीवी डायग्राम में ऐसे दिखाते हैं. 1, ठीक है, क्योंकि देखिए 1 to 2 जो अभी डायग्राम मैंने दिखाया था साइकिल, उसमें भी आपने देखा था कि प्रेशर वाज इंक्रीजिंग, वॉल्यूम डिक्रीजिंग, एंड टेम्परेचर अगर टीएस में प्लॉट करेंगे तो टीएस में आप इस तरह से 1 और 2 को दिखा सकते हैं, क्योंकि कंप्रेशन होगा तो टेम्परेचर भी रेज करेगा. ठीक है, ठीक है. तो हमने अभी सिर्फ कंप्रेशन प्रोसेस को यहाँ पे पीवी और टीएस डायग्राम में यहाँ रिप्रेजेंट किया. नाउ व्हाट विल हैपन ड्यू टू कंप्रेशन, its pressure and temperature will be very high. The pressure and temperature of air will be very high. Now what you will do, you will inject fuel. आप क्या करेंगे, फ्यूल इंजेक्ट करेंगे अक्रॉस दिस हाईली कंप्रेस्ड एयर विद द हेल्प ऑफ फ्यूल इंजेक्टर. फ्यूल इंजेक्टर क्या करता है एक्चुअली कि ये फ्यूल को एटोमाइज्ड फॉर्म में इंजेक्ट करता है, फाइन स्प्रे के फॉर्म में. जैसे ये अगर इंजेक्टर है ना, तो यहाँ से इसके नोजल से, यहाँ पे जस्ट इसका एक नोजल होगा, इस नोजल से स्प्रे के फॉर्म में, फाइन स्प्रे के फॉर्म में, ठीक है, फाइन स्प्रे के फॉर्म में यहाँ पे ये फ्यूल को इंजेक्ट करेगा. फाइन स्प्रे के फॉर्म में क्यों इंजेक्ट करेगा, क्यों, क्योंकि देखिए फ्यूल जो है वो आपका लिक्विड स्टेट में, और यहाँ एयर जो है वो गैसेस स्टेट में, एंड एयर एंड फ्यूल मस्ट बी मिक्स्ड विद ईच अदर. कंबशन तो तभी होगा जब दोनों मिक्स होगा. फॉर प्रॉपर मिक्सिंग, okay, for proper mixing, the air and fuel must be in the same state. Means the physical state of both the medium should be same. Since you know whatever fuel you have stored in the fuel tank is in liquid state, whereas air is in gaseous state. सबसे पहले तो आपको क्या करना होगा, इस लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करना होगा. okay, तो what you are doing actually, आप यहाँ पे इस नोजल के थ्रू इसको एटोमाइज्ड फॉर्म में इंजेक्ट कर. What is the advantage of atomized फॉर्म का मतलब स्प्रे के फॉर्म. इससे क्या होगा कि इसके करस्पॉन्डिंग जो एयर है, जब आपने इसको स्प्रे किया तो इसके करस्पॉन्डिंग जो हाई टेम्परेचर एयर है, उस एयर से ये हीट ले लेगा. ठीक है, ये हीट एब्जॉर्ब करेगा और अपना स्टेट चेंज करके गैस में कन्वर्ट या वेपर में कन्वर्ट. ये लिक्विड फ्यूल जो स्प्रे होता है, ठीक है, ये लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट होगा by absorbing heat from the corresponding air, and its phase its state will be changed. ठीक है, इसका स्टेट चेंज हो जाएगा, और इसका जब स्टेट वेपर हो जाएगा, गैस हो जाएगा, तब ये जाके इस एयर के साथ मिक्स होगा, अदरवाइज इट विल नॉट मिक्स. बट द प्रोसेस इज वेरी फास्ट. समझ में आया. अब फाइन पार्टिकल्स या स्प्रे क्यों, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे लिक्विड है, लिक्विड के फॉर्म में आप स्प्रे कर रहे हैं, यहाँ पे गैस. तो लिक्विड और गैस के बीच में हीट एक्सचेंज होता है. लिक्विड इज रिसीविंग हीट फ्रॉम द करस्पॉन्डिंग हाई टेम्परेचर एयर व्हिच इज हाईली कंप्रेस्ड. आपको पता है यहाँ पे कन्वेक्शन मोड के थ्रू हीट ट्रांसफर हो, एंड यू नो कन्वेक्शन मोड का हीट ट्रांसफर गवर्निंग इक्वेशन इज Q इज इक्वल टू HA डेल्टा. दिस इज द गवर्निंग इक्वेशन अक्रॉस द कन्वेक्शन फिनोमेना. कन्वेक्शन मोड मींस यू कैन से the rate of heat transfer is directly proportional to the surface area. ये A जो लिखा हुआ AS है, surface area. तब greater the surface area, greater will be the heat transfer rate. फाइन स्प्रे आपने इसलिए किया क्योंकि फाइन स्प्रे का जो सरफेस एरिया होगा वो ज़्यादा होगा ड्रॉपलेट के कंपेयर में. जितना फाइनर स्प्रे होगा उसका सरफेस एरिया
and greater the surface area, greater heat transfer. Okay, so if heat transfer rate is high, डीजल का सब तो डेमो किया ठीक है। Okay, so greater the surface area, greater will be the amount of heat. Okay, तो क्योंकि आपको हीट ट्रांसफर अमाउंट बढ़ाना है, उतना हीट फास्ट होगा उतना जल्दी यूटिलाइज होकर। So voice is breaking, sir. Hello, I think it is network problem from your side. Here it is okay. Okay, here you see, since here whatever fuel is sprayed, this fuel must be converted from the liquid state to vapor state. Okay, so that's why this is sprayed in the form of fine spray. अब देखिए यहाँ पे कि जैसे ही आपने फ्यूल को इंजेक्ट किया एट द एंड ऑफ कंप्रेशन स्ट्रोक, दिस फ्यूल विल बी मिक्स्ड विद दिस एयर, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर एयर के साथ ये मिक्स हो जाएगा। ठीक है, एंड वंस दिस विल मिक्स, इट विल अटेन इट्स सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर। यहाँ पे जो आपने बताया कि ड्यू टू कंप्रेशन इटसेल्फ कंबशन अकर्स, तो क्योंकि डीजल का जो सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर है वो पेट्रोल के सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर से कम होता है। ठीक है, सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर मीन्स द टेम्परेचर एट विच इट ऑटो इग्नाइट्स, ऑटोमेटिकली बर्न कर जाए, उसको बोलते हैं सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर। और डीजल का सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर पेट्रोल से कम होता है, एंड दैट इज द रीजन दैट डीजल बाय कंप्रेशन इटसेल्फ इट कैन स्टार्ट कंबशन, whereas in petrol you need to produce the some initial means like spark for the combustion. यहाँ पे आप जैसे ही कंप्रेस होगा ये चार्ज, एयर जैसे ही कंप्रेस होगा, ड्यू टू दिस हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर एयर, फ्यूल विल बी converted into liquid to vapor state, which is atomized, which is injected in atomized form, and fuel once it is injected in the form of atomized particles, it will mix with this air. ठीक है, मिक्सिंग के बाद क्या होगा, ये हीट एब्जॉर्ब करे, मिक्सिंग के पहले ये हीट एब्जॉर्ब करेगा। मिक्सिंग के लिए देखिए दोनों का फिजिकल स्टेट सेम होना चाहिए, वही मैं बता रहा था अभी कि फ्यूल लिक्विड स्टेट में है, गैस एयर जो है वो गैसेस स्टेट में है, तो पहले ये लिक्विड इस गैस से हीट एब्जॉर्ब करेगा, हीट एब्जॉर्ब लेटेंट हीट एब्जॉर्ब करके अपना फेस चेंज करेगा। जैसे ही फेस चेंज होगा देन इट विल मिक्स विद द एयर एंड इट विल अटेन इट्स सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर एंड एक्सप्लोजन टेक्स प्लेस। यहाँ पे जो हीट एडिशन होगा, ठीक है, वो आपका कांस्टेंट प्रेशर पे हीट एड, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा हीट ऐड होगा पिस्टन विल कम डाउन, थोड़ा और हीट ऐड होगा पिस्टन विल कम डाउन, so pressure inside the cylinder will remain constant, so that's why it is known as constant pressure heat addition process 2 to 3. ये 2 to 3 you know heat will be added, then press temperature आपका क्या होगा, रेस होगा, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे कंबशन हो रहा है। जैसे जैसे फ्यूल मिक्स होता चला जाएगा वो सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर अटेन करेगा, बर्निंग स्टार्ट हो जाएगा, फ्लेम न्यूक्लियस स्टार्ट हो जाएगा, फ्यूल फंड जो है फॉर्म हो जाएगा। ये आप पढ़ेंगे डिटेल में आईसी इंजन में, कंबशन इन एसआई इंजन, कंबशन इन सीआई इंजन, ये कंबशन सीआई इंजन के पार्ट में आता है ये। ठीक है, 2-3 ड्यूरिंग 2-3 प्रोसेस टेम्परेचर increases due to addition of heat, whereas pressure remains constant. Now, since fuel is burned in the presence of air, means explosion occurs. ठीक है, combustion start हो गया है, so due to combustion, you know, huge pressure will be created inside the cylinder, and this huge pressure now piston will move downwards, and this is known as power stroke. It means the piston will now expand from TDC to TDC. So next stroke will be 3 to 4, your expansion process, reversible adiabatic
कंबशन प्रोसेस, जैसे कि आपको पेट्रोल के केस में था। जैसे ही कंबशन हुआ, बिकॉज ऑफ द कंबशन, नाउ ह्यूज प्रेशर विल बी क्रिएटेड इनसाइड द सिलेंडर एंड the burn gases will now apply force on the piston downward. So because of that force, piston will move downward, and this stroke is also known as power stroke. It means now you can say you have got power in the engine. This 3 to 4 स्ट्रोक, चाहे वो पेट्रोल हो या डीजल हो, ये जो एक्सपेंशन स्ट्रोक है, यही स्ट्रोक पावर स्ट्रोक। रिमेनिंग स्ट्रोक्स आर आइडियल स्ट्रोक, ये पावर स्ट्रोक। 4 में क्या होगा, पिस्टन आपका एकदम बॉटम पोजीशन में आ जाएगा और जो भी बर्न गैसेस हैं वो एक्सपेंड हो जाएंगी, तो एक्सपेंशन ऑफ बर्न गैसेस। नाउ व्हेन पिस्टन विल मूव अपवर्ड, नेक्स्ट स्ट्रोक में जब ये अपवर्ड मूव करेगा, व्हाट विल हैपन, एग्जॉस्ट विल वॉल्व विल ओपन एंड बर्न गैसेस विल, दैट इज कॉल्ड कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन एज वेल एज एग्जॉस्ट। एग्जॉस्ट स्ट्रोक भी ये यहाँ पे एग्जॉस्ट स्ट्रोक मैंने दिखाया है, और यहाँ पे जैसे ही पिस्टन बॉटम से टॉप करेगा, ये चार्ज होगा। आप ऐसे दिखा सकते हो। Yes, diagram. 1 to 2 is reversible adiabatic compression of air inside the engine cylinder. 2 to 3 is constant pressure rejection. 3 to 4 is reversible adiabatic expansion or power stroke. 1 is प्रोसेस समझ में आया? और प्रोसेस, Yes, sir. difference between diesel and petrol is we will not use spark plug. Instead, we have to use fuel injector, because the self ignition temperature of the diesel is less as compared to the petrol, and compression phenomena itself sufficient enough to cause the combustion in the diesel engine. No need to produce the spark. अगर स्पार्क दे देंगे यहाँ तो क्या होगा कि वो प्री इग्निशन हो जाएगा, प्री इग्निशन डेटोनेशन कॉज करेगा। ठीक है, वो डिटेल में पढ़ेंगे आप कि प्री इग्निशन क्या है, ऑटो इग्निशन क्या है, इग्निशन डिले क्या है, वाई इग्निशन डिले इन द एसआई एंड सीआई इंजन। एसआई का मतलब हो गया स्पार्क इग्निशन इंजन, सीआई का मतलब हो गया कंप्रेशन इग्निशन इंजन। तो जितने भी डीजल इंजन हैं उसको सीआई इंजन बोलते हैं, और जो स्पार्क प्लग बेस्ड है या पेट्रोल इंजन है उसको स्पार्क इग्निशन इंजन। ये आपको आप सेमेस्टर में पढ़ोगे कि इग्निशन डिले क्या है, इग्निशन लैग क्या है, कंबशन एसआई और कंबशन सीआई में क्या है, फ्लेम प्रोपगेशन क्या है, फ्यूल फ्रंट प्रोपगेशन क्या है। ठीक है, then what is pre-ignition, what is the reason of detonation, how to avoid the detonation, what are the factors affecting the detonation। ठीक है, ये सब डिटेल में पढ़ना है आपको, लेकिन अभी ये नहीं है, अभी सिर्फ आपको इस साइकिल के बारे में जानना। तो साइकिल समझने के लिए आपको वर्किंग समझना ही पड़ेगा, इसलिए मैंने ये वर्किंग बताया। अदरवाइज ये वर्किंग आपको लिखना नहीं, लेकिन आपको ये साइकिल समझने के लिए ये वर्किंग जानना जरूरी है कि 1 to 2 क्या रहा है। Is it clear? Now we need to derive the formula for efficiency of diesel engine. Any question? No, sir. Okay, so let us move to the. This is cycle. This already I have discussed. Okay. ये जो प्रोसेस है वो सब लिखा हुआ है यहाँ पे, जो भी अभी मैं बताया ये सारा इसमें लिखा हुआ है। अब देखिए यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, इफिशियंसी का फॉर्मूला डिराइव करेंगे। हाउ वी विल डिराइव द इफिशियंसी फार्मूला? यू नो, इफिशियंसी ऑफ engine is equal to work done upon heat supply, or you can say output upon input. So here output is your work done by the engine and input is your heat amount of heat supplied. ठीक है, कंबशन के पहले जो आपने हीट सप्लाई किया है वो इनपुट होगा। अब देखिए हीट सप्लाई, क्योंकि यहाँ पे आपको मैंने साइकिल जब बताया तभी बताया कि सिंस हीट इज सप्लाइड एट कांस्टेंट प्रेशर, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे और किस प्रोसेस में हीट सप्लाई हुआ है, 2 to 3 में। It means heat supplied at constant pressure formula will be Cp times T3 minus T2. ठीक है, but heat rejection was at constant volume, that is 4 to 1.
दैट्स व्हाई हियर वी आर यूजिंग CV. CV टाइम्स T4 माइनस T4. ये फॉर्मूला हो गया कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन का और कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन. अगर ये दोनों नोन है तो यू कैन फाइंड आउट द वर्क डन. इट विल बी इक्वल टू हीट सप्लाई माइनस हीट रिजेक्शन. तो हीट सप्लाई CP T3 माइनस T4 माइनस CV टाइम्स T4 माइनस T1. तो डीजल इंजन का एफिशिएंसी क्या हो जाएगा? वर्क डन अपॉन हीट सप्लाई. ठीक. सो हीट सप्लाई. नाउ एफिशिएंसी ऑफ डीजल इंजन इज वर्क डन अपॉन हीट सप्लाई. आप इस फॉर्मूला में वर्क डन का रखिए इक्वेशन और हीट सप्लाई का इक्वेशन. तो CP माइनस T2 माइनस CV T4 माइनस T1 अपॉन CP T3 माइनस T4. इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो CP अपन CV क्या होता है? गामा होता है. CV अपन CV क्या होता है? 1 अपन गामा. तो कैंसिल आउट हो जाएगा. बट इस वाले टर्म में CV अपन CP बचेगा. CV अपन CP क्या हो जाएगा? 1 अपन गामा. तो यहाँ पे लिखा हुआ है 1 4 माइनस T4. तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर CP ऑफ डीजल. बट हमें क्या करना है? हमें कंप्रेशन रेशियो और कट ऑफ रेशियो के फॉर्मूले इसके फॉर्मूले. यहाँ ध्यान रखिएगा कि V1 बाई V2 जो हम लास्ट टाइम की चार्ज इंटरेस्ट एंड ये जो रेशियो ये जो बताया था ये V3 बाई V2. यहाँ पे एक रेशियो ये एडिशनल रेशियो आएगा V3 अपॉन हीट वाज एटेड एट कांस्टेंट प्रेशर. V3 बाई V2 को हम यहाँ पे कांस्टेंट सॉरी कट ऑफ रेशियो रो. ये एक नया फैक्टर आएगा इसमें V3 बाई कट ऑफ रेशियो हो गया कि देखिए पॉइंट क्या है? पॉइंट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? रिप्रेजेंट कर रहा है कि यहाँ से रिएक्शन स्टार्ट. ठीक है. और पॉइंट 3 रिप्रेजेंट कर रहा है कि इस पॉइंट पे हमारा कंबशन यहाँ पे. और कब 3 में हमारा क्या हुआ है? किसी तरह का कंबशन नहीं हुआ, सिर्फ आप इंजेक्ट कर इस पॉइंट स्टार्ट इंजेक्शन स्टार्ट. क्या बताया आप? इंजेक्ट कर ही बर्न नहीं कर फर्स्ट. then it will vaporize, then it will mix with the air, तब जाके कंबशन. तो ये कट ऑफ रेशियो एक मिलेगा, कट ऑफ पॉइंट ये मिलेगा. इसलिए इस V3 बाई V2 को हम बोलते हैं कट ऑफ रेशियो. ये यूज होगा आपको न्यूमेरिकल्स में भी. ठीक है. कट ऑफ रेशियो समझ में आया? V3 बाई V2. यस सर. whereas V1 बाई V2 कंप्रेशन रेशियो. जैसा कि पेट्रोल में था V1 बाई V2 इज योर कंप्रेशन रेशियो एंड इट इज डिनोटेड बाई R. If you know the formula for compression ratio and cutoff ratio, अब आप यहाँ पे देखिए यहाँ क्या किया गया है? R V1 by V2 and rho V3 by V2 लिख दिया गया, जिसमें V3 कट ऑफ रेशियो रो. अब देखिए now again we need to do some rearrangements. First we need to identify which process is reversible adiabatic and which is constant pressure. तो जैसे 1 to 2 you know it is reversible adiabatic process. क्योंकि देखिए हम इस एक्सप्रेशन में हम क्या करेंगे ना, ये T1 लिखा हुआ है. अभी हम क्या करेंगे? T2, T3 और T4 T2, T3 और T4 की वैल्यूज को हम T1 के टर्म्स में फाइंड आउट करेंगे और इस इक्वेशन में पुट कर देंगे और उसको सिंप्लीफाई करके देखेंगे कि क्या आ रहा है. ठीक है. T2, T3 एंड T4 को हम लोग T1 के टर्म्स में फाइंड आउट करेंगे एंड आफ्टर गेटिंग all these parameters in terms of T1 we will put this in equation number 1 and we will simplify the equation. यहाँ देखिए 1 to 2 it is reversible adiabatic process, so we can apply this equation that is T2 by T1 upon A equal to V1 by V2 to the power gamma minus 1, and you know V1 by V2 is R compression ratio, so T2 by T1 is equal to compression ratio to the power gamma minus 1.
और यू कैन से T2 इज इक्वल टू T1 टाइम्स R टू द पावर गामा माइनस 1। तो T2 की वैल्यू तो आपने T1 के टर्म में निकाल लिया, T2 इक्वल टू T1 टाइम्स दिस। अब देखिए नेक्स्ट T3 देखेंगे, तो यू नो 2 to 3 प्रोसेस क्या है, 2 to 3 प्रोसेस हमारा कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। कांस्टेंट प्रेशर के लिए हम वॉल्यूम और टेम्परेचर में ये रिलेशन लिख सकते हैं, दैट इज T3 by T2 इज इक्वल टू T3 by V2। लिख सकते हैं ना, कांस्टेंट प्रेशर है तो जैसे P1 V1 अपॉन T1 P2 P2 अपॉन T2 लिखते हो ना, तो प्रेशर को कांस्टेंट कर दीजिए तो वो तो कैंसिल आउट हो जाएगा, यू विल बी लेफ्ट विद ओनली टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। ये क्लियर है? T3 by T2 इक्वल टू V2 इक्वल्स टू रो। जैसे अगर हम 2 to 3 प्रोसेस की बात करें तो हम क्या लिख सकते हैं, P2 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 अपॉन T2 V2 अपॉन T2 इज इक्वल्स टू, बताना पड़ेगा, T2 V2 अपॉन T2 इज इक्वल्स टू P3 अपॉन T3, ये लिख सकते हैं। आइडियल गैस है एयर के लिए, ठीक है। अब हम बोल रहे हैं कि ये कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है 2 to 3, प्रेशर कांस्टेंट है तो P2 P3 कैंसिल आउट हो जाएगा बिकॉज P2 विल बी इक्वल टू P3। जो टर्म लेफ्ट होगा वो यही बचेगा, V2 अपॉन T2 इक्वल टू P3 by T3, या T3 को आप इधर ले जाओ, V2 को इधर ले जाओ, तो आपका जो एक्सप्रेशन हो जाएगा वो यही हो जाएगा, T3 अपॉन T2 इक्वल टू P3 by V2। एंड यू नो V3 by V2 इज योर कट ऑफ रेशियो, तो इसको हम रो लिख दिया। T3 क्या हो जाएगा यहाँ से, T3 विल बी इक्वल टू T2 टाइम्स, क्योंकि T2 को हमने इस रो से मल्टीप्लाई कर दिया, T3 will be rho into T2 rho times T2, and you know T2 in terms of T1 in the previous equation, T2 को already आपने T1 के term से find out कर लिया है, तो just put the value of T2 in terms of T1, so now you will be able to calculate the value of T3 in terms of T1। T3 क्या आ रहा है, rho times T1 into R to the power gamma minus 1, it means now you know T3 also in terms, यहाँ पे आपने T2 निकाल लिया टर्म्स ऑफ T1, यहाँ पे आपने T3 निकाल दिया, अब बच गया आपका T4। देखिए अगेन यू सी प्रोसेस 3 to 4 इट इज योर रिवर्सिबिलिटी एक्सपेंशन प्रोसेस, क्योंकि एंट्रोपी कांस्टेंट है तो फॉर कांस्टेंट एंट्रोपी और इस फॉर्मूला टेंपरेचर एंड वॉल्यूम T3 by T4 गामा माइनस, यहाँ पे देखिए P4 by अरेंज किया गया है, यहाँ P4 by P3 को हम क्या लिख सकते हैं, P1 by P3 लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ देखिए 4 और 1, ये 4 to 1 क्या है, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, जो वॉल्यूम 4 पे है सेम वॉल्यूम 1 पे भी है, तो आप क्या लिख सकते हैं, P4 इज इक्वल टू P1, ये लिख सकते हैं ना, 1 वॉल्यूम कांस्टेंट। कैन यू राइट दिस, P4 इज इक्वल टू P1? Yes. सो दिस इज द रीजन कि आप यहाँ V4 by V3 लिखे हैं, फिर V4 को V1 लिख दिया आपने, V1 by V3, और V1 by V3 को आप क्या लिख सकते हैं, V1 by V2 into V2 by V3, ठीक है। V2 V2 कैंसिल होगा तो वही होगा, V1 by V3 आएगा, तो V1 by V2 you know it is R, that is compression ratio, and V2 by V3 you know it is 1 by cut off ratio। तो ये जो V4 by V3 इस इक्वेशन में आपने लिखा है, this V4 by V3 will become R upon rho, that is compression ratio upon cut off ratio। Just put this value of V4 by V3 equals to compression ratio by cut off ratio, ये आ जाएगा R to the power rho, sorry R upon rho to the power gamma minus 1। यहाँ से आप T4 निकाल लीजिए, ठीक है, ये T4 लेफ्ट हैंड साइड में T3 by T4 है, राइट हैंड साइड में आया R upon rho to the power gamma minus 1, so from here you can calculate T4 in terms of T3, and T3 आपने T1 के टर्म्स में ऑलरेडी यहाँ फाइंड आउट किया, just put the value of T3 in terms of here, so you will get the value of T4 equals to T1 times rho to the power gamma।
देखिए आपका जो ऑब्जेक्टिव था वो फुलफिल हो गया. योर ऑब्जेक्टिव वाज टू फाइंड आउट द पैरामीटर्स, फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ द पैरामीटर्स T2, T3, T4 इन टर्म्स ऑफ T1. T4 को T1 के टर्म्स में लिख दिया आपने, T1 टाइम्स रो टू द पावर गामा. T3 को आपने T1 के फॉर्म में लिख दिया, रो टाइम्स T1 into R to the power gamma minus 1, और T2 को आपने T1 के टर्म्स में फाइंड आउट कर लिया, that is T1 point times R to the power gamma minus 1. Now what you need to do, you just put these values of T2, T3 and T4 in terms of T1 in equation number 1. इस इक्वेशन में आपको पुट कर देना है, ठीक है. And after putting and after rearrangements you will get this expression. Efficiency of diesel engine आपको ये मिलेगा, that is 1 minus 1 upon gamma R to the power gamma minus 1 in bracket rho to the power gamma minus 1 upon rho minus 1, where R is your compression ratio, gamma is, you know, it is Cp by Cv, ठीक है, and rho is cut off ratio, that is Vp by Vp. ये आएगा डीजल एफिशिएंसी, डीजल इंजन का फार्मूला एफिशिएंसी. ये भी डिराइव करने के लिए आता है और न्यूमेरिकल में यूज. क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Okay, so now you have gone through Otto cycle and diesel cycle. Okay. Now we will discuss about dual cycle. Dual cycle means it is the combination of Otto and diesel cycle. तो चूंकि आपने ऑटो डीजल दोनों पढ़ लिया है तो इसमें ड्यूल साइकिल में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. वर्किंग वही है जो इसका है, बस वहाँ पे ये दोनों साइकिल कंबाइंड हो जाएगा. तो हम आपको एक जस्ट इंट्रोडक्शन दे रहे हैं उसका भी. हाँ देखिए, dual combustion cycle, these cycles also called the limited pressure cycle or mixed cycle because it is the combination of Otto and diesel both cycles, ठीक है. Heat is partially added at constant volume and partially at constant pressure, ठीक है. क्योंकि आपको पता है कि in case of petrol engine heat is added at constant volume and in diesel engines heat is added at constant pressure, ठीक है. So the advantage of which is that more time is available to fuel which is injected into the engine cylinder before the end of compression stroke for combustion, ठीक है. इसका एडवांटेज क्या होगा, क्योंकि हमने आपको बताया कि आप इग्निशन लैग, इग्निशन डिले के बारे में पढ़ेंगे जो कि बहुत ही एक सिग्निफिकेंट पैरामीटर है इंजन परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन में, कि इग्निशन लैग या इग्निशन डिले अगर ज़्यादा होगा तो इंजन का परफॉर्मेंस डिटोरिएट करता है, यू विल नॉट गेट रिक्वायर्ड पावर, ठीक है. तो अगर हम इस मिक्स साइकिल या ड्यूल साइकिल को यूज करेंगे तो इसका एडवांटेज ये होगा कि वी विल गेट मोर टाइम टू फ्यूल to be injected inside the engine cylinder at the end of compression stroke, ठीक है. अब देखिए यहाँ पे इस साइकिल को एक बार देख लीजिए. ये देखिए, आपने देखा था 1 to 2, अगर जब हमने ऑटो और डीजल दोनों की बात की थी तो 1 to 2 रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन इसी तरह से ड्रॉ किया था. When it was petrol engine, heat was added at constant volume 2 to 3, constant volume पे heat add हुआ था. When it was diesel engine, heat was added at constant pressure. तब आप अगर इसको ठीक है, कैसे ये दोनों साइकिल मिक्स हुआ है, यू नो, जब आपने ऑटो साइकिल पढ़ा तो आपने पढ़ा कि फर्स्ट 1 to 2 आपका रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन हुआ, ठीक है. इसके बाद आपने कांस्टेंट वॉल्यूम, जब पिस्टन आपका टीडीसी पे था उसी पर्टिकुलर पोजीशन पे आपने हीट ऐड कर दिया, कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन हो गया 3 अप टू 3 2 to 3. पर डीजल इंजन में आपने क्या पढ़ा कि जो हीट ऐड हुआ है वो कांस्टेंट प्रेशर पे हुआ, मतलब ये हॉरिजॉन्टल लाइन होगा, ये चूंकि पी प्रेशर एक्सिस है, ठीक है, ये वॉल्यूम है. तो ये जो हीट एडिशन है वो ऑटो साइकिल की वजह से है, और ये जो हीट एडिशन है इट इज ड्यू टू द डीजल साइकिल, दोनों का कॉम्बिनेशन. एंड आफ्टर दैट यू विल गेट द एक्सपेंशन 3 to 4 तो हो गया आपका कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन.
4 to 5 हो गया आपका रिवर्सिबल एडियाबेटिक एक्सपेंशन और पावर स्ट्रोक यू कैन से, और 5 to 1 जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन। तो दोनों को आपने यहाँ कंबाइंड कर पीवी डायग्राम में जो यहाँ दिखाया गया है, देखिए 2 to 3 it shows constant volume heat addition, 3 to 4 represent constant pressure heat addition। ठीक है, इसी तरह से जब आप टीएस ड्रॉ करेंगे तो इसमें भी दोनों को दिखाना होगा आप। ठीक है, 1 to 2 आप दिखाओ पहले, 1 to 2, फिर आप कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन पे इसको दिखाओ कि कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट ऐड हुआ, फिर कांस्टेंट प्रेशर पे हीट ऐड हुआ, इसको ऐसे दिखाना होगा, और ये एक्सपेंशन और ये हीट रिजेक्शन। Means this is 2 to 3. 2 to 3 represents constant volume heat addition and 3 to 4 represent constant pressure heat addition। ठीक है, दोनों के स्लोप से आप आइडेंटिफाई करेंगे कि ये कांस्टेंट वॉल्यूम है क्योंकि इसका स्लोप ज़्यादा होगा, इसका स्लोप ज़्यादा होगा, इसका स्लोप कम होगा। जिसका स्लोप ज़्यादा होगा इट मीन्स इट इज कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस यस सर। ओके, तो ये हमारा ड्यूल साइकिल हो गया। अब ड्यूल साइकिल के लिए अगर एफिशिएंसी डिराइव करना है तो आपको दोनों को कंसीडर करना होगा। जैसे देखिए टोटल हीट सप्लाई, क्योंकि अब जैसे आपने ऑटो और डीजल में किया था वैसे ही यहाँ भी करना है। बस ये ध्यान रखना है कि चूंकि हीट सप्लाई दो प्रोसेस में हो रहा है, एक कांस्टेंट वॉल्यूम पे हो रहा है और एक कांस्टेंट प्रेशर पे हो रहा है, तो हीट सप्लाई आपका दोनों ऐड हो। इफ वी कंसीडर 1 kg ऑफ एयर, द टोटल हीट सप्लाई विल बी heat supplied during the operation 2 to 3 plus heat supplied during the operation 3 to 4। तो यू नो 2 to 3 में हीट सप्लाई जो हुआ है वो कांस्टेंट वॉल्यूम पे हुआ है, एंड 3 to 4 में जो हीट सप्लाई हुआ है वो कांस्टेंट प्रेशर पे हुआ है, इसलिए यहाँ सीपी लिखा है, यहाँ सीवी लिखा है। बट हीट रिजेक्शन एक ही है, दैट इज 5 to 1। ठीक, 5 to 1 हीट रिजेक्शन एक ही है, तो आपने लिख दिया यहाँ पे, और वो भी कांस्टेंट वॉल्यूम पे है हीट रिजेक्शन। यहाँ देखिए 5 to 1 हीट रिजेक्शन इज अ कांस्टेंट वॉल्यूम, तो आपने लिख दिया CV टाइम्स T5 माइनस T। Now if we need to derive the equation for the efficiency, we need to know about the work done also। So work done क्या हो जाएगा, हीट सप्लाई माइनस हीट रिजेक्टेड। तो हीट सप्लाई आपका ये था CV T3 माइनस T2 प्लस CP T4 माइनस T3, हीट सप्लाई माइनस हीट रिजेक्ट, ये दोनों कर दिया आपने। ठीक है, अब ड्यूल साइकिल की इफिशिएंसी अगर हम फाइंड आउट करना चाहें तो क्या हो जाएगा, वर्क डन अपॉन हीट सप्लाई। फिर वही करेंगे हम लोग कि वर्क डन का फॉर्मूला यहाँ ऊपर रखेंगे न्यूमरेटर में, और हीट सप्लाई डिनोमिनेटर में रखेंगे। इसको सिंप्लीफाई करेंगे और पहले इसको हम टेम्परेचर के टर्म में और CP/CV के टर्म में इसके फार्मूला को डिराइव करेंगे। तो ये क्या आ रहा है, एफिशिएंसी ऑफ ड्यूल साइकिल इज 1 माइनस CV टाइम्स T5 माइनस T1 अपॉन CV टाइम्स T3 माइनस T2 प्लस CP T4 minus T3। This will be the equation for dual cycle efficiency। अब इसको और सिंप्लीफाई वैसे ही करेंगे जैसे आपने, क्योंकि देखिए एक्सप्रेशन जो फाइंड आउट करना है आपको वो टेम्परेचर के टर्म्स में नहीं फाइंड आउट करना है, आपको गामा रो आर इसी के फॉर्म में फाइंड आउट। गामा CP/CV का रेशियो है, आर कंप्रेशन रेशियो V1/V2 है, और V3/V2 कट ऑफ रेशियो। तो कट ऑफ रेशियो का कॉन्सेप्ट वहीं आएगा जहाँ डीजल इंजन हो या मिक्स्ड इंजन हो। पेट्रोल अगर इंजन प्योर पेट्रोल होगा तो वहाँ कट ऑफ रेशियो नहीं आएगा, क्योंकि V3/V2 कट ऑफ पेट्रोल के इंजन में 1 हो जाता है, क्योंकि हीट एडिशन हम कांस्टेंट वॉल्यूम पे। ठीक है, तो इसी इक्वेशन को देखिए फर्दर वैसे ही सिंप्लीफाई किया गया है कि पहले 1 to 2 प्रोसेस को रिवर्सिबल एडियाबेटिक लेके इस रिलेशन को अप्लाई किया गया है, एंड यू नो V1/V2 इज योर R, तो आपने लिख दिया T2/T1 इक्वल टू R। नेक्स्ट साइकिल 2 to 3 क्या है, वो कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है, और कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस कैन राइट दिस एक्सप्रेशन टेम्परेचर दैट इज T3/T3। ठीक है, इसको एक वैल्यू कुछ दे दिया गया है। ठीक है, प्रेशर एक्सप्लोजन रेशियो
ठीक है। P3/P2 को आप प्रेशर एक्सप्रेशन रेशियो बोल रहे हैं, यहाँ पे T2 को T3/बीटा कर दिया आप। इसके बाद T4/T5, अगेन 4 to 5 क्या है आपका रिवर्सिबिलिटी ऑफ हीट एक्सपेंशन, उसके लिए भी T टेम्परेचर और वॉल्यूम में आप ये रिलेशन अप्लाई कर सकते हैं। T4/5 P5-1 एंड V5/V4 को आप फिर से वही R/ρ लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि V5 V1 के इक्वल है। 5 to 1 आपका कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है, जो वॉल्यूम 5 पे होगा सेम वॉल्यूम 1 पे होगा। तो इंस्टेड ऑफ 5/V4 you can write 5/V4 और P2/V4 को आप P3/V4 तो इसी को सिंप्लीफाई करके R/, जैसे प्रीवियस वाले। कहने का मतलब है कि आपको सारी वैल्यू, सारे पैरामीटर्स को सिंप्लीफाई करके फाइनली इस इक्वेशन आप जब फाइनली इस एक्सप्रेशन को गेट बाय 1 माइनस क्या क्लियर? यस सर। अब जैसे यहाँ देखोगे, अगर ये ड्यूल साइकिल की इफिशियंसी का फार्मूला आपने डिराइव किया, अगर हम बोले कि आप डीजल के लिए इस फार्मूले को डीजल इंजन की इफिशियंसी में कन्वर्ट कीजिए, तो यू नो डीजल में 2 to 3, ये जो सॉरी नॉट 2 to 3, बीटा क्या लिखे हो आप? बीटा किसकी वैल्यू लिखे हो? बीटा लिखे हो P3/P2। P3/P2 क्या है? ये है P3/P2, ये है। ठीक है, तो वहाँ तो कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस होता ही नहीं है, ये प्रेशर 1 हो जाता है, क्योंकि ये P4/P3 जो आप यहाँ लिख रहे हो बीटा, ये P3/P2, ठीक है। तो P3/P2 क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट रहता है। अब इस एक्सप्रेशन में बीटा की जगह 1 रख दीजिए, अगर इस एक्सप्रेशन में बीटा 1 रख दीजिए, तो ये जो एक्सप्रेशन आएगा वो 1 - 1/r⁻⁻1 इंटू ρ⁻⁻1, ये 1 - 1 0 हो जाएगा, इंटू 1 इंटू गामा ρ-1। तो जो एक्सप्रेशन आएगा वो डीजल की इफिशियंसी वाला फॉर्मूला आएगा, क्योंकि बीटा क्या है? बीटा P3/P2 है। P3/P2 जब आप डीजल इंजन यूज करेंगे तो वो रहेगा ही नहीं, वो 1 आ जाएगा, क्योंकि वहाँ पे जो हीट एडिशन होता है वो कांस्टेंट प्रेशर पे होता है। तो अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो दोनों का रेशियो क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। उस एक्सप्रेशन, अगर इस एक्सप्रेशन में बीटा की जगह आप 1 रख दोगे, तो ये जो एक्सप्रेशन आएगा वो डीजल साइकिल का एफिशिएंसी है। यस सर। यस। इसी तरह से ये जैसे रो है V3/V2, तो रो को अगर आप 1 कर दोगे, 1 कर दो और रो को 1 करोगे, तो जो इफिशियंसी का फार्मूला आएगा वो आ जाएगा आपका 1 - 1/r⁻⁻, वो पेट्रोल का फार्मूला आ जाएगा। ठीक है, तो इफ यू नो द ड्यूल साइकिल एफिशिएंसी, जनरल एक्सप्रेशन फॉर ड्यूल साइकिल एफिशिएंसी, यू कैन कन्वर्ट दिस एक्सप्रेशन इन द फॉर्म ऑफ एफिशिएंसी ऑफ डीजल साइकिल एंड एफिशिएंसी ऑफ ऑटो साइकिल। ठीक है, ये जनरल एक्सप्रेशन है which combines both petrol and or you can say both auto and diesel cycle। क्योंकि हमारा जो, जैसे अगर हम यहाँ पे ऑटो का बनाएं तो ऑटो में ये होता है हमारा 1 to 2 it is compression, 2 to 3 it is constant volume heat addition, 3 to 4 it is expansion and this is constant volume heat rejection। ठीक है, ये हमारा ऑटो साइकिल में होता है, ये 2 to 3 कांस्टेंट वॉल्यूम है। लेकिन जब पेट्रोल की बात कर रहे हैं हम, तो पेट्रोल में हमारा ये जो हीट ऐड हुआ वो कांस्टेंट प्रेशर पे हीट ऐड हुआ, ये प्रोसेस, फिर एक्सपेंशन, फिर हीट रिजेक्शन, 1 2 और 3। आप 2 to 3 प्रोसेस को बस देखिए यहाँ पे ध्यान से, यहाँ पे 2 to 3 में प्रेशर बढ़ रहा है बट वॉल्यूम कांस्टेंट।
ठीक है, ऑटो साइकिल। बट यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट है, वॉल्यूम बढ़ रहा है। ठीक है, Yes. अच्छा, ये तो 4 cycles we have discussed. Now in the next class we will discuss about Stirling and Ericsson cycles, which is very simple and small cycle. ये हम लोग पढ़ेंगे। इसके बाद आपका जो है ये सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। यू विल बी लेफ्ट ओनली विद द न्यूमेरिकल पोर्शन। तो हम न्यूमेरिकल आपको ऑटो, डीजल और कॉर्नाट पे कराएंगे टिल लास्ट। ठीक है, लेकिन आपको नेक्स्ट क्लास के बाद से, नेक्स्ट क्लास आई थिंक ट्यूसडे को होगा। आफ्टर ट्यूसडे आपका जो प्रेजेंटेशन का मैंने टॉपिक दिया था वो स्टार्ट करेंगे। ठीक है, या एक काम करेंगे, थर्सडे, वेडनेसडे को एक न्यूमेरिकल भी, एक दो न्यूमेरिकल डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, थर्सडे से, नेक्स्ट थर्सडे को आपका प्रेजेंटेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो जो ग्रुप, फर्स्ट 2 ग्रुप हैं, एक सेकंड में दिखा देता हूँ। ये यही था ना, रोल नंबर 20, 121 एंड 303, देयर टॉपिक वाज स्टर्लिंग साइकिल। ठीक है, तो ये ट्यूसडे को स्टर्लिंग साइकिल हम पढ़ा देंगे आपको। आप लोग प्रिपेयर हो जाइए। ये 2 ग्रुप, रोल नंबर 120, 121, 303 स्टर्लिंग साइकिल, देन 126, 128, 305 एंड 312 एरिक्सन साइकिल। आप लोग का जो प्रेजेंटेशन होगा वो नेक्स्ट थर्सडे को होगा। ठीक है, क्लास में। उसके बाद जो क्लास आएगा उसमें इन दोनों ग्रुप का होगा। ठीक है, और उसके बाद जो क्लास होगा उसमें मीन्स 2 या 3 क्लास लगेगा। अगर दूसरे क्लास में ही टाइम मिला तो इनको भी कर देंगे। ठीक है, नहीं तो इनका तीसरे क्लास में होगा। और उसके बाद जो क्लास बचेगा उसमें हम लोग न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे, जो बचे होंगे न्यूमेरिकल। क्लियर? Yes. So roll number 120, 121, 303, 126, 128, 305 and 312. Your presentation will be on the next Thursday during class hour. Those who are not present, please inform to them. क्योंकि सारे ग्रुप मेंबर्स का होना जरूरी है। आपको पीपीटी बनाना है और उस पीपीटी को शेयर करेंगे आप, शेयर करके एक्सप्लेन करना है। एंड सम क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड, यू नीड टू आंसर। एनी क्वेरी? No, sir. Okay then, everyone is present. Thank you, sir. Okay, you may leave the class. Thank you.